Pathshala, and you all must have gone through the topic wherein we have mentioned Nifty regains the mojo and what your strategy should be. So, participants, we have our speaker, Mr. Sanjeev Bhasin, with us, wherein he would be guiding us in this current market, which is hovering nearby all-time high since last 1 week. So, in this current market, he is the person who can guide us properly what to buy and what to sell uh, in this current market. Sanjeev sir, over to you. हाँ, थैंक यू प्रसाद. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सबको नमस्कार और बहुत बहुत मुबारक. अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं 2-3 महीने से तो वो प्रसाद को याद है 17,100 पे था जब निफ्टी हमने कहा था 18,500 जाएगी और ये तो सुपर सीड कर गया 19,500 हो गया. सो आई थिंक दैट जैसे मैंने कहा 16,800 was extremely overdone on the downside. It was very pessimistic. 18,500 is the new equilibrium and above that the bull market started. अब उसके कई कारण हैं. FIs जो अंडरवेट थे बहुत जोर से वो ओवरवेट हो गए, वो क्या इक्वल वेट आ रहे हैं अभी तो उनके यहाँ फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट बहुत है. दूसरा म्यूचुअल फंड्स हैव अंडर परफॉर्म्ड. इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स 2 महीने से कैश पे बैठे थे और वेट कर रहे थे करेक्शन. They were sitting on something like 7% of cash, almost 1 lakh crore. तो आप देख सकते हो एक दिन म्यूचुअल फंड अगर बेचते हैं दूसरे दिन लेने आ जाते हैं. तो इस in this liquidity scenario there is very little to say that the valuations are not in our favor. Now corrections are very shallow. 1-2 दिन correction आता है और फिर मार्केट घूम जाती है, which tells us that the underpinning of feeling of missed out is huge. तो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ मार्केट थोड़ी सी टॉप हैवी हो गई है. But who am I to say? You can easily go to 819, 850 or even 20. So this also gives way कि मैं 3-4 महीने से जो कह रहा था कि इनफैक्ट मैंने टीवी पे कई बार कहा था कि इस साल 21,000 जरूर आएगा और उस समय लोग बाग हंस रहे थे. 15.5, 16, 16.5 में कोई मांगने तो तैयार नहीं था और वही हो गया. 45,000 बैंक निफ्टी और 19,500 निफ्टी. तो 21,000 विल कम बट आई डोंट थिंक इट्स कमिंग इमीडिएटली. यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेथ लेगा. देयर विल बी सम करेक्शन और करेक्शन अगर 19,000 टूटता है तो 18,500 तक डेफिनेटली आ सकती है. दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुन टाइम. अभी के लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना है क्योंकि ये एक और मिथ है कि मैं टाइम कर दूंगा या टाइमिंग कर दूंगा मार्केट की. ऐसा कभी नहीं होता. अगर आपने टाइमिंग करी होती तो ये 2 महीने में जो पैसा बना है 2 साल में नहीं बना. सिंपली बिकॉज उसी के लिए पैसा बना जो बना हुआ था. जिसने आईडीएफसी फर्स्ट मेरे कहने में 2 साल पहले 35 पे लिया और पिछले साल भी कहा वो आज 85 देख रहा है. उसी तरह से बहुत सारे शेयर है. आईडीएफसी फर्स्ट, अशोक लीलैंड, जीएमआर, आई कैन गो ऑन. तो बने रहने में ही समझदारी है. वेदर यू डू अ सिप, whether you do a mutual fund, these must continue. Mutual funds have definitely underperformed and that is evident कि NAVs have not kept up और आपका portfolio maybe not as much as the index has done. इस कारण से being stock specific is very necessary. What is the broader view? Broader view आज ये है कि inflation number US में 3.2, 3.4 और 3 के करीब आना है. 3 से 3.3 के बीच में आने की उम्मीद है. Which again will see the dollar weaken. The dollar has come down to a 3-month low below 102, 101.8. मेरा कहना अभी भी है dollar can come down to 98, which will mean emerging markets will be in a very sweet spot. Plus जो आप देख रहे हो कि inflation and interest rates, I think they are topping out globally. और मुझे कोई दो राय नहीं that inflation is headed lower even locally and globally, which will again mean that stocks are the best place, but globally stocks are hitting new highs. Recently Japan has outperformed. वहां पे भी we hit a new high, and locally I think India has been the most startling market. जो last year चाइना में पैसा जाना था और FIs की withdrawal थी वो सब वापस आ गया, and China is the ugly duckling. In all this scenario we know the economic data from Europe has been weak और वहां macro की अभी भी weakness continue कर सकती है. But indices are forward looking and stock market discounts all negatives. So negatives and positives, that is what is going on. और अब आप देख रहे हो there is a beeline to buy stocks. क्या लें क्योंकि you seem to have missed the rally.
तो क्लियरली यहाँ पे ऑटोज हैव बीन द डार्लिंग। और आपको याद है बॉश मेरा अंडर परफॉर्मर होता था, मदरसन सुमी 60-62 वाला, वो भी 93 हो गया। अशोक लीलैंड, मदरसन सुमी, महिंद्रा और मारुति जो मैं 2-3 महीने से कह रहा हूं, वो आज 10,000 का हो गया, मारुति 12,000 जाएगा। टाटा मोटर हैज बीन द डार्लिंग एंड सो हैज हीरो मोटो एंड बजाज, बिकॉज दे हैव टेकन द मैंटल फ्रॉम आइशर ऑन द बैक के वंस टाई अप विद Triumph and the others tie up with the Harley have actually set the cat amongst the pigeon. तो ये और थ्री व्हीलर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट और रूरल इनकम बनी है, इसलिए आज जो डेटा है वो बता रहा है ऑटो सेल्स आर हिटिंग न्यू हाइज और 2 ईयर हाइज। अब इस समय मैं आपको फिर बताता हूं कि थोड़ा सा कैश ऑन हैंड रखना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा। आई डोंट सी much steam on the upside, 200-300 पॉइंट अभी भी जा सकता है, बट दैट विल बी ऑल स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए आईटी में 2-3 दिन से वीकनेस थी, आज एचसीएल टेक के नंबर्स आने हैं, सो आर द नंबर्स फ्रॉम टीसीएस। एटलीस्ट टीसीएस नंबर सीम टू बी बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, सो दे कैन अगेन बी अ लिटिल बिट ऑफ जिसे कहते हैं सेक्टोरल चर्न। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में बहुत बड़ा विलय था और वो आज हो चुका है। And I think HDFC will now have more weightage on the bank nifty, and its weightage on the nifty also slightly reduces because HDFC is no longer in play. ये HDFC बैंक longer term में बहुत बड़ी institution बन जाएगी। It's the 4th largest bank in the world, and I think that will stand out. तो कोई भी long term पैसा डालना चाहता हो तो HDFC बैंक fits the bill perfectly. उसके अलावा देखिए मैं कई टाइम से कहता था कि इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, ICICI जनरल और हिटिंग न्यू हाइज। और मुझे अभी भी कोई दो राय नहीं कि एफडी में पैसा डालने की वजह आप अगर ये चारों इंश्योरेंस कंपनीज में पैसा डालें लॉन्गर टर्म, ये बहुत फायदेमंद रहेगी। अब कहाँ है मोमेंटम? मोमेंटम है फिनटेक में। फिनटेक, जोमैटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, ये शेयरों में बहुत तेजी दिख रही है और शॉर्ट टर्म में दे हैव रन अप, बट अगले 2 साल में ये 2-3 गुना भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। सो लॉन्गर टर्म मनी गोज इनटू दीस फिनटेक आइडियाज और पेमेंट बैंक्स, दैट इज पेटीएम, जोमैटो एंड पीबी फिनटेक। आई एम आल्सो वेरी बुलिश as a contrarian on Chambal and UPL because I think rainfall has been good. Chambal is the largest urea and phosphate player और मुझे लगता है Chambal can be an under a dark horse which can ride its way back to 325 by the end of the year. UPL में भी बहुत bearishness है, but agrochemical and specialty chemical, particularly UPL, Jubilant Ingrevia and SRF, मुझे तीनों बहुत पसंद है इस भाव पे। सो भाव इसमें हमारे फेवर में है। इसके अलावा मारुति मुझे बहुत पसंद है और वो भी आपको डिक्लाइन पे लेना चाहिए। बैंक्स में देखिए आरबीएल जो स्ट्रगल करता था वो न्यू हाई पे आ गया है। आरबीएल इज अ परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ अ टेक ओवर। देयर इज नो प्रमोटर हु ओन्स मोर देन 1.5%, no large investor. Hence at 170 it was a steal and I think 200 is now there. It can even hit 250 given the momentum in banks and you're seeing that. IDFC first has been a darling, so has AU Bank. यहाँ 2 बैंक मैं स्पेसिफाई करूंगा, फेडरल एंड सिटी यूनियन बैंक। I think they are very, very good plays here. In pharma, I'm very, very bullish on Lupin. Is a dark horse and I think it can truly outperform. Coming to FMCG, Nestle has been my favorite in a long-term portfolio and Godrej Consumer, both have outperformed. I still think Marico is a very good play on this, on the index and in the FMCG basket. In IT, I continue to feel HCL Tech Mahindra and Persistent are good plays. You can add a LTIM जो अब index में भी आ चुका है। Aside from that, Piramal Pharma is my darling stock. ये 130 रुपए जाएगा। मैंने 70-72 में कहा था, ये 95 होके आ गया, ये 130 रुपए जाएगा। स्टॉक्स के बारे में हम और जिक्र करेंगे। वी विल कंटिन्यू टू अपडेट यू, बट माय व्यू हियर इज दैट प्लीज बुक सम प्रॉफिट ऑन द ट्रेडिंग साइड एंड रोटेट योर पोर्टफोलियो एंड ट्राई एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय हेजिंग योरसेल्फ। हेज करने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं, आप इंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं
बजाज फाइनेंस में रोज 200 रुपए की चाल आती है। कुछ आपके फाइनेंस स्टॉक्स थोड़े वीक लग रहे हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। चोला वाज वन माय डार्लिंग स्टॉक एट 450, इट हैज हिट सुपरसीडेड एवरीवन, 1200 रुपए हो गया। तो लॉन्ग टर्म तो आपको बता सकते हैं क्या होएगा, शॉर्ट टर्म में इवन वी आर परप्लेक्स्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द रैली एंड नो लेट अप। तो आई थिंक दैट यहाँ पे वी विल वेट फॉर द इन्फ्लेशन डेटा टुडे, हाउ द यूएस मार्केट्स प्ले। बट एक चीज क्लियर है, द डॉलर इज लूजिंग स्ट्रेंथ, which can be only good news for emerging markets. The other thing I would highlight is that local flows are very strong. The rupee, even though there is so much of inflow, the rupee is not being able to. Daniel, ठीक है. The rupee is being, in this 82.50, 83. Now, if the rupee starts to strengthen, then I think you will see a flurry of money again coming, because ETF money will chase मोमेंटम। इस कारण से थोड़ा सा हेज करके रखिए, थोड़ा प्रॉफिट बट बने रहिए। ये कुछ शेयर्स आपको बताए हैं, पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक में जरूर सिप कीजिए। ये 3 शेयर 2-3 साल में 2-3 गुना भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा मैंने आपको कहा आरबीएल, एयू बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन, द 3 इंश्योरेंस कंपनीज, एचसीएल, टेक महिंद्रा, पिरामल फार्मा, जुबिलेंट इंग्रीविया एंड Chemplast Sanmar, ये मुझे बहुत बुलिश है। मारुति is the top play, Hero must be in your portfolio, you can replace with Eicher, and Bajaj Auto is regaining its momentum because it's the largest exporter in two-wheelers, and जो आपका tie up हुआ है with Triumph, it will again have a lot of order bookings. So longer term the markets are looking very, very bullish. Short term में we could see a correction which can weed out the men from the boys, and that will be good for the market कि यहां से 500-700 पॉइंट की करेक्शन आ गई। अभी इमीडिएटली 19,300 पे सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 19,000 जाएगा, और अगर वो टूटता है तो 19,500 से 700 तक मार्केट जाने की उम्मीद है। विद दैट प्रसाद, आई थिंक वी कैन लीव इट फॉर क्वेश्चन आंसर्स, एंड इफ देयर आर एनी अदर थिंग्स ऑफ पॉइंट यू कैन प्लीज स्पेसिफाई। Thank you, sir. Thank you for guiding us. Most of our partners and clients were specifically asking us on this all-time high market, what to invest and what to sell. So most of new things you have already cleared out, like which new stocks we can go ahead, and as well as you also informed about which stocks we can exit, and we can keep some liquidity so that any point of time any correction is coming, we can get into it. So there are certain questions related to the stocks. So one question is related to ZEAL, NMDC, NBCC, and SBI Indian Bank. तो also I would like to specify, अभी किसी ने आईटीसी पे पूछा है, मैं 2 साल से आईटीसी बोलता था, 250 रुपए 200 रुपए में पड़े रहता था, अब न्यू हाई पे आ गया, तो लोग बाग पूछ रहे हैं आईटीसी में बने रहिए। इट इज अ ब्लू चिप, 550-600 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, और प्लस अगर आप विनर पे हो तो रहिए। दूसरी बात आपने प्रसाद सही पूछी, देखिए Z has been an underdog, but I think personally the merger will go through. It is just a matter of time, and I think there are some vested interest because Sony has the cricket rights for its currency. Sony is not going to give up, and even though the worst of promoters was there in the Goenkas, I think they are on their way out. 3% की shareholding से you cannot hold back such a big blockbuster merger. अगर जी का मर्जर हो जाता है, अगर नहीं कब होएगा, ये टाइमिंग की बात है, ये 500 रुपए का भाव हो जाएगा 2 साल में। तो अगर आप हैं तो बने रहिए, अगर आप ले सकते हैं और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो बने रहिए। SBI has just broken out, we will wait for return results, बट मेरा स्टार था PNB, जो मैंने 40, 42, 45 पे कहा, 61, 62 हो गया है। PNB, Can Bank are 2 stocks which can be re-rated. Union Bank was one of my top picks at 54, it has hit 85, 90. I still think some of the PSUs have momentum, but rather than that, I would play with Kotak, ICICI and Axis Bank. I think they are going to be the next leaders. और कौन सा था, हाँ देखिए NMDC and the metals are looking strong. JSW has been on my list all the way from 760, and I think JSW is headed to 1000. अगर पाउंड डॉलर 98 के पास आने वाला है तो मेटल्स भी लिए a very sweet spot. हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को,
JSW, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, आप इनका बास्केट बना लीजिए और NMDC भी उसमें शामिल हो जाएगा। और पूछिए। थैंक यू सर। सर व्हाट अबाउट अदानी विल्मर? देखिए अडानी स्टॉक्स हैव गिवन सुपर्ब रिटर्न। अगर आप उसको डेस्पेयर समझते हो, डेस्पेयर और एक्सटेसी आर टू इमोशन। जब डेस्पेयर और फियर था तो किसी से लिया नहीं गया 1000-1200 रुपए में। अभी भी मुझे लगता है दे आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल, बट इन द शॉर्ट टर्म दे आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल एज द मार्केट इज। बट मुझे अभी भी लगता है सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स यहां से भी 50% अपसाइड दे सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 years। थैंक यू सर। सर दीपक नाइट्राइट एनी व्यू? देखिए दीपक नाइट्राइट, SRF, ये जुबिलेंट, केमप्लास्ट, ये सब अक्यूमुलेट है। We know that specialty chemicals is doing weakly, is not doing all that well. We will wait for results. But आज नहीं तो कल चाइना में स्टिमुलस आया ही आया, और अगर चाइना में स्टिमुलस आता है, metals and specialty chemicals will be on the way up. SRF would be my top pick here, but Deepak Nitrite please hold. मैंने दीपक फर्टिलाइजर और चंबल भी मेंशन किए हैं। देखिए ये खरीफ क्रॉप से पहले बढ़ते हैं और इनमें सोइंग होती है, उस समय डिमांड आती है। तो आप ये 3 महीने के लिए शेयर ले रहे हैं क्योंकि आपके पास वैल्यूएशन है। और मुझे कोई दो राय नहीं, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स विल डू वेरी वेल। रैलीज, UPL, दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर एंड चंबल, ये चारों शेयर 6 महीने का अगर आप व्यू लें यहां से दिवाली तक, तो दिवाली से बियॉन्ड यू विल डू वेरी वेल इन देम। IOC, HP, BP आर अ बाय एट एनी डिक्लाइन। ये शेयर यहां से दुगने भी हो सकते हैं। दे आर नॉट जस्ट प्ले ऑन OMCs, they are getting the maximum benefit of weak oil prices from Russia. Reliance processes, refines only sweet crude. Hard and sulfur oriented crude is processed by all these three. इस बारी IOC का प्रॉफिट जो होगा पूछ ले पूरे साल के लॉस के से ज्यादा प्रॉफिट से ज्यादा होगा। कोई भी डिक्लाइन पे IOC, HP, BP must be in your portfolio. Piramal Enterprises is another stock जो मैंने 750, 750 पे कहा था, 1000 रुपए हो गया, ये 1500 भी जा सकता है, लेकिन डिक्लाइन पे लीजिए। ये DLF और गोदरेज जैसे है। रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर बिकॉज सोना और स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। Thank you, sir. So, any view on LIC and HCI? Like LIC, as of now, it is nearby the issue price. So I again reiterate, LIC may take time, or it is an over, because सबके पास है, but their NAV and their ULIP will do well. But अभी भी मैं सोचता हूँ the 4 Prasad, HDFC Life, SBI Life, ICICI Pru and ICICI General, these 4 are must-haves in your portfolio. So try and concentrate on the winners. You can have LIC, but just hold it. Yes, sir. Sir, what about these small finance bank? Like there is special with Ujjivan Small Finance Bank and Pradeep Phosphate. देखिए Ujjivan has done exceedingly well. There is no question about that. And in small finance bank, I again find value in. I would rather go with bigger banks like Federal and City Union Bank. I think उनके numbers इस quarter में बहुत अच्छे आएंगे. Federal is trading 1 time price to book. It gave you a correction about to 121, 122. अगर results पे मिलता है वो लीजिए. उसके अलावा मुझे RBL बैंक बहुत पसंद है, ये भी बुक 1 टाइम बुक से नीचे है. उज्जीवन इज अ परफेक्ट एग्जांपल, और आई थिंक एक नया बैंक आ रहा है जो IPO में, वो भी एक अच्छा सब्सक्राइब होएगा. Yes, sir. It's Utkarsh Small Finance Bank. Yes. To participants, if you have any particular question, you can always ask. देखिए और मैं बता दूं, प्रसाद और टीम बहुत मेहनत करती है. फ्रेंचाइजिंग इज वन वे व्हिच वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, तो हमारे साथ फ्रेंचाइज खोलिए. वी विल गिव यू ऑल रिसर्च आइडियाज. प्रसाद से पूछिए, लास्ट 6 महीने से मैंने कोई हफ्ता नहीं छोड़ा जहां मैं ट्रैवल नहीं किया, और बिजनेस भी आया है, ब्रोकरेज भी आई है, और आपके पास AUM आता है. सो वी हैव नो टू वेज. India Infoline is going to be amongst the top 3 from the top 5, and along with that we want to grow our franchise model very very strongly. अगर आपके अकाउंट
है तो और खोलिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव की पाठशाला भी, और प्रसाद को मैंने पीडीएफ कह दिया। आई थिंक नेक्स्ट वीक इन बॉम्बे वी विल स्टार्ट दैट फर्स्ट टाइम। वी विल गिव यू एवरीथिंग, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। मैंने पूरा पीडीएफ तैयार किया है और मैं आपको 1-2 दिन में पूरा कुछ समझाऊंगा। उससे आप डेरिवेटिव में समझ आ जाएगी आपको, ट्रायल एंड एरर से आप परफेक्ट भी बन सकते हो, विच विल मीन यू कैन मेक trading a full-fledged business. If you are smart, you can use options and use hedges. That is how the gamut plays. So Prasad, we will take it from next week. Maybe we will start in a big metro and then we will slow it down. But we are ready to give this education to most of our partners and to our big clients, how to get about derivatives. I have prepared a full PDF. मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस है इन डेरिवेटिव्स, और मैं आपको फुल फ्लेज नॉलेज दूंगा क्या आपकी है और क्यों आप लूज करते हो पैसा, एंड हाउ टू मैनेज दैट वेरी वेरी वेल. Yeah, thank you, sir. So I think we can close this session now, and very soon we'll have next session of Sanjeeva Singh Ki Pathshala. And as sir informed, we will have first session on derivatives very soon, and sir is going to travel for that in metro cities, and then we can also look into tier 2 cities as well. So, I've got another query on algos. I've seen on the TVs, we can give you knowledge on algos. Algos are not difficult, but आम आदमी को समझने में टाइम लगता है. मैं अगर 2 दिन की पाठशाला आपसे लूंगा डेरिवेटिव्स पे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. यू हैव टू सिट फ्रॉम 10 to 5, और 2 दिन में आपको नॉलेज आ जाएगी, बट ट्रायल एंड एरर से आप आगे सीखोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस और फर्स्ट हैंड यूज करना बहुत मुश्किल है. सेम इज द थिंग विद एल्गोज. एल्गोज आर नॉट डिफिकल्ट. दे आर प्रोपोनेंट्स ऑफ हाउ यू डू अनइमोशनल ट्रेड. अनइमोशनल होता है कि द मशीन टेल्स यू व्हाट टू बाय एंड सेल. उस कारण से आपका एग्जिट भी हो जाता है और आपका एंट्री भी हो जाती है. यू डोंट हैव टू यूज इमोशंस. व्हाई डू यू लूज मनी? बिकॉज यू आर इमोशनल. इस कारण से डेरिवेटिव्स आर अ स्ट्रेटजी वेयर देयर इज अनइमोशनल ट्रेड, जस्ट एज टेक्निकल चार्ट्स आर. सो वी विल गिव यू मोर नॉलेज ऑन दैट. और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंजॉय दिस बुल रन. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग. वी विल हैव करेक्शंस, बट प्लीज बी इन्वेस्टेड. इंडिया इन्फोलाइन के साथ अकाउंट खोलिए, फ्रेंचाइज खोलिए, अपने घर वालों को शामिल कीजिए. छोटी छोटी चीजों से बड़ा बनता है. प्रसाद विल टेल यू वी आर स्टार्टिंग द स्मॉल केस, रीस्टार्टिंग दैट, and we are ready to grow our franchise. I am again on the way of traveling again on every weekend, and if you have franchises, if you have AUM, we will help you get business on that. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir, and thank you all the participants. So we are closing this session now. Before that, we